আমাদের যা যা অনুষ্ঠান আছে তা আপনারা সকলেই জানেন। একটি হিন্দিতে রবীন্দ্রনাথের শর্ট স্টোরি আছে ভিখারিনী, একটি নতুন কল্পনা দিয়ে সাজানো একটি নতুন অনুষ্ঠান আছে আপনাদের সকলের জন্য। আমি আগে থেকেই সমস্ত বলবো না, তাহলে আকর্ষণ কিছুটা নষ্ট হয়ে যাবে। তার নাম প্রথম কবিতা। আর চিরন্তনভাবে আমাদের ছোটোবেলা থেকে বড়বেলা পর্যন্ত একটি ছোট গল্প না জানলে বোধহয় আমাদের বাচ্চাদের রাতে ঘুম ধরতো না, সেটি হচ্ছে কাবলিওয়ালা এবং মিনি। আজকের গল্প আছে কাবলিওয়ালা নাটক এবং সর্বশেষ অনুষ্ঠান নৃত্য নাটিকা শ্যামা। সেই নৃত্য নাটিকাকেও আমরা একটুখানি নিজেদের কল্পলোকের মাধুরী দিয়ে একটু অন্যরকমভাবে সাজিয়েছি। 25শে বৈশাখে প্রকৃতির নতুন জন্ম, আমাদেরও জন্ম এই 25শে বৈশাখে, রবি ঠাকুরের জন্মদিনে। দেখতে হয় না ক্যালেন্ডার, জিজ্ঞাসা করতে হয় না তারিখটা কবে, আগে থেকেই বুকের মধ্যে সাড়া ওঠে 25শে বৈশাখ আসছে। তাই 25শে বৈশাখ ঘুম ভাঙানোর একটি দিন। 25শে বৈশাখ শুধু বিশ্বকবির জন্মদিন নয়, 25শে বৈশাখ প্রতিটি মানুষের জন্মদিন। আর আমরা এই জন্মদিনকে যেন ফুরোতে দিতে চাই না। বছরের প্রতিটি দিন কেন 25শে বৈশাখ হয়ে আসে না, অন্তরের ভেতরে আমাদের সদা নিরন্তর এই জিজ্ঞাসা। আমি তো ছিলেম ঘুমে, তুমি মোর শির চুমে গুঞ্জরিলে কি উদাত্ত মহামন্ত্র মোর কানে কানে। চলরে অলস কবি ডেকেছে মধ্যাহ্ন রবি, হেথা নয় হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে, অন্য কোথা অন্য কোনোখানে। কবির ভাষা দিয়েই কবিকে পুজো করবার অঙ্গীকার। রবীন্দ্রনাথ ভাষার ঈশ্বর, শব্দের জাদুকর। রবীন্দ্রনাথ কোনো মানুষ ছিলেন কি? রবীন্দ্রনাথ কোনো মানুষ হতেই পারেন না। সৌরজগৎ থেকে এক জ্যোতিষ্ক হঠাৎ এসে পৃথিবীতে নিক্ষেপিত হয়েছিল, যার নাম রবীন্দ্রনাথ। শুধু বাঙালি কেন, আপামর জনমানসের মধ্যে প্রাণ প্রবাহ রূপে বেঁচে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের সাথে যাদের পরিচয় করিয়ে দেব, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের পরে পরে তাদের সাথে আপনারা পরিচিত হবেন। আমার সাথে আজকে যিনি সঞ্চালনায় রয়েছেন, কারণ আমাদের বাঙালি বন্ধুদের সাথে সাথে রবীন্দ্রনাথকে কি অবাঙালিরা চিনবে না? সেহেতু রবীন্দ্রনাথকে অবাঙালিদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের নাটকটি, একটি নাটিকা আমরা হিন্দিতে প্রস্তুত করব। এবং আমার সাথে সাথে যিনি কথা বলবেন, আমি যা যা বক্তব্য বাংলায় বললাম তাই বক্তব্য আপনাদের কাছে হিন্দিতে রূপান্তর করে বলবেন বিশেষ কবি, এবং তিনিও হচ্ছেন একজন শব্দের জাদুকর। আমার কাছেই দাঁড়িয়ে রয়েছেন শ্রী রাজেশ আত্রেয়জি। তিনি আপনাদেরকে আমার সাথে সাথে সমস্ত কিছু বিবরণী দেবেন আমার থেকেও বেশি সুন্দর করে। আমার পরে আসছেন শ্রী রাजेश आत्रेय जी। सर आइए। सभी उपस्थितों को मेरा सादर नमन, सादर नमस्कार। जी आयानु खैर मकदम। बंगाली में तो आप सुन ही चुके हैं। बंगाली बहुत मीठी भाषा है, सुनने में तो बहुत मधुर लगती है, समझने में हम चंडीगढ़ वासियों को थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। और हम लोगों के लिए यदि बंगाली भाषा में कोई शब्द या कोई लाइन याद है तो एक ही है, आमी तोमाके भालोबाशी। यकीनन हम सभी आपसे प्यार करते हैं और आप हमें प्यार करते हैं। आज की ये शाम एक बेहतरीन शाम होने वाली है। अमृता जी ने बहुत विस्तार में नहीं, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ बताया रविंद्रनाथ जी के बारे में। 7 मई 1861 को जिनका जन्म हुआ, 7 अगस्त 1941 को जो हमारे बीच से चले गए। उनका जीवन अपने आप में एक कथा है, एक महाकाव्य है। वो गुरुदेव जिनके नाम पर इस टैगोर थिएटर में हम लोग यहाँ आज उपस्थित हैं, हम उन्हीं को स्मरण करते हुए उन्हीं की कुछ रचनाओं को आज आपके बीच आपके साझा करेंगे। ये कुछ हिंदी में होगा, कुछ बंगाली में होगा, लेकिन यकीन मानिए आपके दिलों की तार को जरूर झंकोर जाएगा। ये
कहीं ना कहीं झंकृत हो जाएंगे आपके दिल की सभी धड़कनें, सभी तार हमारी इस आज की प्रस्तुति से। जो बंगाली भाषा में समझ चुके हैं उनके लिए मैं हिंदी भाषा में नहीं बल्कि नॉन बंगालीज के लिए बताना चाहूँगा कि हमारी आज 4 प्रस्तुतियाँ आपके बीच में यहाँ पर होंगी। सबसे पहले हम आपके सामने गुरुदेव की लिखी हुई एक लघु नाटिका भिकारिन को प्रस्तुत करेंगे। हिंदी में है, आप लोग के दिल तक पहुँचेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तदुपरांत हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे प्रथम कविता, शायद बंगाली में ऐसे ही बोलते हैं, या प्रथम कविता यदि हिंदी में कहा जाए, या फर्स्ट पोएट्री, जो कि शेषेर कविता एक बहुत बड़ी वहाँ काव्य रहा है गुरुदेव का, उसमें से उस पर आधारित है। और उसमें मैं जब वो शुरुआत होगी तब उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, प्रथम कविता के बारे में। इसके बाद हमारी एक बेहतरीन प्रस्तुति जो बंगाली भाषा में है लेकिन किसी को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वो है काबुली वाला। ये कहानी भी हम सुन चुके हैं, फिल्म भी देख चुके हैं, हम सब इससे परिचित हैं काबुली वाला से। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबके दिलों को वास्तव में जोड़े रखने वाली है एक बेहतरीन प्रस्तुति जो कि बड़ी मेहनत से और बहुत ही चुनौती के साथ इस पूरी टीम ने तैयार की है। कालीबाड़ी की हमारी टीम ने, अमृता गांगुली जी की पूरी टीम ने, सभी साथियों के भरपूर सहयोग से तैयार है वो नाटिका श्यामा। अगर किसी ने पढ़ी हो जैसे मैंने पढ़ी है तो मेरे दिल के करीब है, और आप सबको भी आज की नाटिका बहुत 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 पसंद आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इन 4 प्रस्तुतियों को हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। समय हम जानते हैं कि इसमें लगेगा, ज़रूर आप देखना चाहेंगे सभी को। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर इस समय विराजमान है। आप पहले बंगाली में बताइए, फिर हिंदी में बताता हूँ। এক এমন বঙ্গ সন্তান, যেই বঙ্গ সন্তানের সাথে আমাদের পরিচয় কিছু মুহূর্ত আগেই হয়েছে, কিন্তু উনি অদ্ভুতভাবে বাঙালির টানে, বাংলা ভাষার টানে এবং সবচেয়ে বড় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের টানে আজকে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। ডিজিএম অফ এসবিআই শ্রী কাজল কুমার ভৌমিক আজকে আমাদের সাথে আছেন মুখ্য অতিথি হয়ে। উনি মঞ্চে আসবেন প্রদীপ প্রজ্বলন করতে, সাথে নিয়ে আসবেন কালীবাড়ি চণ্ডীগড়ের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী রাजेश रॉय। जी हाँ, हम स्वागत कर रहे हैं श्री काजल कुमार भौमिक जी का, जो भारतीय स्टेट बैंक के डीजीएम हैं और सीडीओ हैं, सर्कल डेवलपमेंट ऑफिसर। राजेश कुमार रॉय जी जो कालीबाड़ी के हमारे महासचिव हैं, उनको लेकर मंच पर आ रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ बलकार सिद्धू जी हमारे बीच में है, एक मशहूर हस्ती चंडीगढ़ की। सर, आपसे भी अनुरोध है, कृपया मंच पर आइए। दीप प्रज्वलन में आप भी हमें अनुग्रहित कीजिए। वैसे तो आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सम्माननीय दर्शक, सभी सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, हमारे दिल के करीब हैं, पर फिर भी आपको रिप्रेजेंट करने के लिए माननीय भौमिक जी, राजेश रॉय जी, बलकार सिद्धू जी और अमृता जी भी उनको ज्वाइन कर रही हैं। एक दीप प्रज्वलन की एक हमारी शुद्ध भारतीय परंपरा है साथियों। हम लोग दीपक जलाना जानते हैं, दीपक बुझाना नहीं जानते। हम दीप जलाते हैं और ऐसे मौके पर जो श्लोक बोलते हैं मैं उसका उच्चारण करूंगा, आप लोग तालियां बजाते रहिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते, दीपकाय नमोस्तुते। और देखिए, ये भारतीय परंपरा है कि सभी जूते उतार करके, चप्पल उतार करके दीप जलाते हैं। जी हाँ, हमारे देश की यही सभ्यता है। हम माता सरस्वती का आह्वान करते हैं, हम सभी देवताओं का आह्वान करते हैं इस दीप प्रज्वलन के साथ। यहाँ मैं विशेष रूप से एक अनुरोध करना चाहूँगा नई पीढ़ी से कि आप लोग भी जब कभी कोई खुशी मनाते हैं, केक काटते हैं, उस पर मोमबत्ती जलाते हैं, प्लीज़ उसे बुझाना आज से बंद कर दीजिए। हम लोग तो प्रकाश उत्सव मनाने वाले हैं। दीपावली पर घर घर दीप जलाना जानते हैं, प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारे में हर जगह घरों में दीपक जलाना जानते हैं, हम बुझाना नहीं जानते। हम बुझाएंगे नहीं आज से कोई भी मोमबत्ती, कोई भी सेलिब्रेशन में कोई भी दीपक, हम उसे जलाए रखेंगे, मंदिर में जला करके रखेंगे, किसी भी धर्म स्थान पर रखेंगे, पर वो दीपक जलता रहेगा, प्रकाश उत्पन्न करता रहेगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते, दीपकाय नमोस्तुते। उस दीपक को हम प्रणाम करते हुए, क्योंकि हमने कहा भी है कि ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, हम तो माता का रूप ज्वाला में देखने वाले हैं। इसके साथ हमारे आज की
आज की इस शाम की एक औपचारिक यहाँ पर उद्घोषणा हो गई, उद्घाटन हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब यहाँ पहुँचे हैं। और चलिए अब हम पहली प्रस्तुति के होंगे। हमारे सभी महानुभावों का धन्यवाद। एक छोटी सी सैपलिंग के साथ हमारे दोनों महानुभावों का हमने सम्मान किया। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। माननीय भौमिक साहब, बलकार सिद्धू जी, राजेश राय जी और बाकी जिनके नाम मैं यहाँ से नहीं बोल पा रहा, उन सबको भी मेरा नमन, सबको सादर प्रणाम जी। तो लीजिए, आपके सामने पहली प्रस्तुति हम दिखाने जा रहे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई लघु नाटिका है ये। इसका नाम है भिकारिन। इसकी कहानी आप सबको वास्तव में विचलित कर जाएगी, अभिभूत कर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। माँ का प्रेम क्या होता है। अभी अभी पीछे हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया, इंटरनेशनल मदर्स डे जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लिए तो मैं कहूँगा कि हर दिन माँ का दिन है। कौन सा ऐसा दिन है जो माँ का नहीं है दोस्तों। जितनी माएँ बैठी हैं उनसे नहीं, मैं दूसरों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपकी माँओं का कोई एक विशेष दिन है। नहीं, नहीं है ना। तो हम तो हर रोज माता को प्रणाम करते हैं, माता के साथ चलते हैं। मैं भी सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ, अपने बच्चों की माँ को भी प्रणाम करता हूँ। तो सभी को मैं प्रणाम करते हुए, सभी माताओं को नमस्कार करते हुए, नमन करते हुए हम ये पहली प्रस्तुति आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए भिकारिन। भगवान के नाम पे दे दे बाबा। भगवान थोड़ा भला करे। ये सावित्री है। मंदिर के द्वार पर खड़े रहना और श्रद्धालुओं के आगे हाथ फैलाकर विनती करना इसका रोज का काम। ये जानती है कि मंदिर में आने वाले नेक दिल और श्रद्धालु हुआ करते हैं। इसका यह अनुमान असत्य भी नहीं है, पर फिर भी आने जाने वाले 2-4 पैसे इसके हाथ पर रख ही देते हैं। अंधी उनको दुआएं देती और इसी वजह से चल रहे इस नियम से मंदिर की चौखट पर आने वाली यह अंधी भिखारिन सावित्री कभी निराश नहीं होती। इसके लिए तो ईश्वर न जाने कितने रूपों में आकर इसकी खाली झोली भरता है। सुबह से शाम तक यह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती है। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ जाती है। इसकी झोपड़ी भी नगर से बाहर है, इसलिए रास्ते में भी याचना करती जाती, किंतु पथिकों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वालों की होती, जो पैसे देने की अपेक्षा छिड़कियां देना अधिक पसंद करते। तब भी अंधी निराश न होती और इसकी योजना बराबर जारी रहती। झोंपड़ी तक पहुंचते इसको 2-4 पैसे और मिल जाते। झोंपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 9 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और इस अंधी के दिल से चिपक जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्त को चूमती
बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया है, इस बात से कोई परिचित नहीं। 8 वर्ष पहले तो अंधी को अकेले ही देखा था। एकाएक लोगों ने सावित्री के साथ एक बच्चा देखा, वो रो रहा था। अंधी सावित्री उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना नहीं थी। किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। बस उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास है और प्रसन्न है। अंधी भिखारिन बच्चे को अपने से अच्छा खिलाती है और पहनाती है। अब दोनों माँ बेटा खुश हैं। सु भैया, हम एक बात सोच रहे थे। ये जो बचवा है, ये दिन भर अपनी अम्मा का इंतजार करता है। क्या है? अरे ये ही तो अंधी की आंखों का उजाला है। बस भगवान दोनों को सलामत रखे, सलामत रखे दोनों को। क्या बना रही हो अम्मा? हम हमारे बच्चों के लिए खाना बना रहे हैं। खाएगा ना हमारा बच्चा? अच्छा ये बताओ बच्चे, अम्मा के जाने के बाद क्या किए रहे तुम? अम्मा, वो जो तुम खाना बना के गई थी ना, वो खा के हम सो गए थे। अम्मा, जब तुम चली जाती हो ना, तब हम उग जाते हैं। काहे उग जाते हो? अपने साथ के दोस्तों के साथ खेलने जाया करो ना। का हुआ मुन्ना, कुछ सोच रहा है का? अम्मा, हम ये सोच रहे थे कि कल से हम भी आपके साथ काम पर चले और आपका काम में हाथ बटाएं। नहीं बच्चे नहीं। अरे हम भीख मांगते हैं तुमने ले। हम अंधी है, हमारा बच्चा किसी के आगे हाथ फैलाए ये हमको मंजूर नहीं। ये हमारा बच्चा तो बड़ा होकर सेठ बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा। ये भीख काहे मांगेगा? हम एक बात सोच रहे थे। कौन बात सोच रहे थे बे? कि अब की बार मेले में हम बसंती को अपने दिल का बात कह देंगे। कौन बात बे? क्या मुका बेहद प्यार करत है। देखो पल्लर, हम तो का कितनी बार कहे हैं, बसंती हमरा पहला प्यार। ओके बारे में ऐसी वैसी बातें हम सुनेंगे ना। काय सीधा सी तुहार मेहरारू थोड़ी है जो पहले दाव लगाई ली ऊ की बसंती। कौन गाँव पे तूने जुआ बसंती? हमरा पहला प्यार कोई के ना दे। गाली कैसे दिया बे? धोखा गाली। धोखा गाली दिया। गाली कैसे दिया? लोगे को गाली दिया। गाली दिया। तू गाली कैसे दिया? ए मुन्ना, ए बचवा, ये कहाँ है हमारा बचवा? अम्मा, ए मुन्ना, अम्मा, ये हमारा बचवा। अच्छा, अम्मा, तुम आ गई? ए बचवा, हम तोहरे लिए बहुत ही अच्छी चीज लाए हैं। क्या लाई हो? हमारा मुन्ना बिल्कुल खुश हो जाएगा। ऐसा क्या लाई हो? ए मुन्ना, जा हमारा हंडिया ले आ। लाते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज लाए हैं। देखना हमारा मुन्ना का दिल खुश हो जाएगा। ले लो। ये देख बच्चे, अम्मा का लाई है। पैसे। देख बच्चे, कितने सारे पैसे लाए हैं हम। हाँ। देख देख, अम्मा पर हड्डियाँ भर गई है। हंडिया भर गई। हाँ। ये उठा बच्चे, यार हंडिया में पैसे। थोड़ा ध्यान से अंधी ने एक हंडिया अपने घर में छुपा रखी थी और जो खाना वाना उसे मंदिर में लोगों से मिलता था उसी से काम चलाती थी और पैसा जमा करती रहती थी। ये मुन्ना, तुमको पता है कितना सारा पैसा है? हम भी कैसी बातें करते हैं, तुमको कैसे पता होगा? अब तो हमारा मुन्ना अच्छा अच्छा खाना खाएगा। आज क्या खाएगा हमारा मुन्ना? अम्मा ही बनाएगी। हमारा मुन्ना भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, स्कूल जाएगा। स्कूल
चीज तो खाएंगे बच्चे, लेकिन ये सारा पैसा ना हमको कहीं रखना होगा। रखना है? हाँ, रखना है। गाली कैसे दिया बे? तू अभी हमको गाली दिया, तू तो गाली दिया, गाली दिया, तू गाली दिया, तू गाली कैसे दिया बे? तू दिया गाली। कैसा हो रहा था बे लल्लन? कुछ नहीं मुनीम जी, हाँ मुनीम जी, अब कल्लन हमारी शादी की बात कर रहा था। कर भी लेनी चाहिए, हैं? उम्र हो गई है तुम्हारी, हैं? जी मुनीम जी। हैं? अरे मुनीम जी, वो सेठ जी कब तक आएंगे? अरे आराम से बैठे रहो, आते ही होंगे, ठीक है? ठीक है मुनीम जी, ठीक है। सेठ बनारसी दास, जो कि बहुत ही अमीर आदमी है, जिनका गांव में पूरा रुतबा है, दिन के 12 बजे नहा धोकर अपनी गद्दी पर पहुंचते। इनके पास कर्ज लेने वाले तो लोग आते ही थे, पर अपना पैसा जमा करवाने के लिए भी इनके पास लोग आते थे। धर्म कर्म में सेठ जी की बहुत रुचि थी। सैकड़ों लोगों को तो ये बात पता ही थी, और अंधी को भी ये बात पता चलती है, और वह अपने पैसे की हंडिया लेकर सेठ जी के पास पहुंचती। कभी आएंगे भैया? ए भैया, ए भैया, इस सेठ जी कभी आएंगे भैया? अरे तुम सेठ जी को नहीं जानती? उनका तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है। सेठ बनारसी दास के पास में कभी आते हैं जब हमें पैसों की जरूरत पड़ती, हम इनसे पैसा उधार ले लेते हैं और हमको तनिको दिक्कत नहीं। बड़े ईमान वाले आदमी हैं सेठ जी, धर्मात्मा हैं। अरे तो हमारे सेठ तो परमात्मा आदमी है। चलो, सही जगह आए हैं हम। यहाँ हमारा पैसा सलामत रहेगा। अरे आप लोग शांत हो जाइए, हैं? आराम से बैठिए। ये 12 बजने को है, सेठ जी पूजा अर्चना करते आते ही होंगे, ठीक है? ठीक है भैया। हैं? ठीक है। अरे मुनीम जी, अरे लाइन में आओ, आराम से बैठो, हैं? सेठ जी सबसे मिलेंगे, सबके सुनेंगे, ये ठीक है? लेकिन लाइन में कैसे आए मुनीम जी? वो सबसे पहले तो हम ही आए हैं ना। हाँ, तुम ही आए हो। जी आओ जी। नाम? सुखिया। अच्छे, दुखिया। अरे जी सुखिया। जी सुखिया। अरे नहीं, सुखिया नाम है हमारा। सुखिया जी। वो पहले दिन पूरे 15 रुपए जमा करवाए हैं। तब क्या लेने आए हो? तो और लाए हैं ना। तो लाओ ना, लाओ। रुकिए रुकिए, ये लो। हो गई जमा। मुनीम जी, जरा ठीक से गिनना। अच्छा, 1 मिनट रुको, तुम रुको, हैं? रुको जी। मैं बताता हूँ। जी ये 1, ये 2, ये 3, चौथा तू तेरे को जमा कर लूं? नहीं मुनीम जी, ठीक है, जाते हैं मुनीम चलो। जी। ठीक है, जाते हैं। हाँ, जाते हैं। ए भैया, सेठ जी कभी आएंगे भैया? आते ही होंगे, तुम भी रुको। हाँ। कहाँ रह जाते हैं मालिक? जी मालिक। अरे ललन कहाँ मर गए मालिक? मेरे साथ करो। उसे ध्यान रखना। मुनीम, क्या हिसाब किताब है? मालिक सुखिया 3 रुपए जमा करवा गया। मुनीम इतने पैसे लाता कहाँ से? लगता है चोरी चिकारी करने लग गया मालिक। और सब्जी वाले का? सब्जी वाला मालिक 2 रुपए लेने हैं और 2 रुपए की तरकारी ले ली है। अच्छा। हाँ बोड़ा,
क्या है तेरे पास? हमरे पास हमरे पास ना सेठ जी, हमरे पास ना हंडिया है सेठ जी। अरे क्या है इस हंडिया में? हंडिया में पैसा है सेठ जी। हम जिंदगी भर भीख मांग मांग कर इकट्ठा किए रहे। अरे तो क्या सारी उम्र जमा ही करती रहेगी या कभी खर्च भी करेगी? इसे हम अंधी क्या करेंगे पैसे का? ये तो हम हमारे बच्चों के लिए इकट्ठा किए रहे। अच्छा ये बता, तेरा बच्चा है कितने साल का? हमार बच्चा कुछ 8-9 साल का होगा सेठ जी। कमाल है, तुझे अपने बच्चे की सही उम्र भी नहीं पता? ये पता है ना सेठ जी, काहे नहीं पता? वो हमार मुन्ना ना 9 साल का है। नो ठीक है मुनीम जी, बोड़ा का पैसा गिन के भाई खाते में लिख लेना। जी मालिक। मुनीम जी के पास जमा करवा दो। ठीक है सेठ जी, अभी करवा देते। इधर आओ। अरे उधर नहीं, इधर आओ। अरे इधर आओ। अब बस ऊपर ही गिरोगी क्या? लाओ। ये लो भैया, हमारा पैसा जमा करता भैया, ये ठीक से रखना भैया। हाँ ठीक से ही रखेंगे। ये हो गया भैया, गिन रहे हैं। ये ठीक से गिनो भैया। ये नाम? हमारा नाम सावित्री है भैया। सावित्री। पता? वो बापू धाम है ना भैया, उसके पास जो मंदिर है, वो छोटी छोटी झोपड़ी है ना, वही एक झोपड़ी में रहते हैं। ठीक है। एक हो गया भैया। गिन रहे हैं। होंगे जमा, होंगे। हो गए भैया। हाँ। ये भैया तनिक फिर से देख लो ना, हमारी जिंदगी भर की कमाई दे रहे हैं तुमका, कि एक बार फिर गिन लेते तो। हाँ होंगे जमा। ये हो गए भैया। हाँ। ये भैया देखना, भगवान तुमको बहुत ही खुश रखेगा। हाँ तो आज जोड़ी बनी रहेगी भैया। जाए रहे हमने बात याद रखना, लंबी उम्र होगी तो आज बच्चे जिएंगे। देखना भगवान तुमको सदा खुश रखेगा। मुनीम जी, थोड़े पैसे उधार चाहिए थे, बकरीद के लिए बकरा कटवाना था। क्या कहा? शक्ल तुम्हारी मुर्गे जैसी है, वो तुम्हें बकरा काटना है? मुनीम जी, वो शबनम कह रही थी। क्या कह रही थी शबनम? शबनम कह रही थी मुनीम जी से कह देना पैसे दे देंगे। कितने पैसे चाहिए? 10 रुपए मिल जाता, मेहरबानी होती मालिक। 10 रुपए? 10 रुपए हैं? पूरे खानदान ने देखे तुम्हारे 10 रुपए? और बकरा तो वैसे भी 8 का आता है। भाव तो पता नहीं है मालिक। ये लो 10 रुपए, 2 रुपए शबनम को दे देना। मेहरबानी मालिक। क्या चढ़ गया? आशीर्वाद लेता मालिक। हटल। मालिक कोई जो आपने दिए थे भाई, कुछ नहीं। ठीक है जाओ। ये सारी उम्र बीत जाएगी नहीं मियाँ, ये कर्जा चुकाते हैं। बकरा कटे ना कटे, एक दिन तुम्हारी जरूर कटेगी गर्दन। अंधी भिखारिन पैसे जमा करने के बाद अपने घर में अपने बच्चे के पास आ जाती है और अपने बच्चे के साथ खूब लाड़ दुलार करती है, बहुत प्यार करती है और इस प्रकार समय बीतता जाता है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के,
मुन्ना, ये कहाँ गया मुन्ना? ए मुन्ना, ये मुन्ना, ये कहाँ हुआ मुन्ना? ये बोल ना, ये खेल खेल रहा है अम्मा के साथ। ए मुन्ना, ये उठ ना, ये मुन्ना, ये उठ ना, तुमको तो बहुत तेज बुखार है। ए मुन्ना, ये उठ ना, कहाँ हो गया तुमको? ए घनसो भैया, ओ घनसो भैया, ए घनसो भैया, ए घनसो भैया, क्या हुआ सावित्री? ये देखो ना, ये मुन्ना को क्या हो गया? अभी तो हमरे साथ खेल रहा था, इसको तो बुखार लग रहा है भैया। हाँ, इसको तो बहुत तेज बुखार है। ए भैया, हमारे मुन्ना को बबूत बाबा के पास ले चलो भैया, ये अभी नहीं चलो। चलो सावित्री। बहुत तेज बुखार हो गया इसको तो। मुन्ना, ये उठना भैया, आके भैया, ये अभी ले चलो, बाबा के पास ले चलो। चलो सावित्री, चलो। इतना तेज बुखार। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधान शूलं वुशुण्डीशिरं शङ्खं सन्ददतिकरैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधान शूलं वुशुण्डीशिरं शङ्खं सन्ददतिकरैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। हे बाबा। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। चामुण्डाय विच्चै। बाबा, ये देखो ना, हमारे मुन्ना को क्या हो गया बाबा? ये बाबा, इनको देखो तो, इनको बहुत तेज बुखार है बाबा। क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय बाबा, विच्चै। पहले हमारे मुन्ना को देखो तो, ये आँख ही नहीं खोल रहा है, आँख खोल बचवा। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। अरे सावित्री, चामुण्डाय विच्चै। वैद्य को दिखा ले, दवा ले, इससे कछु नहीं होगा। वैद्य की दवा का कौन फायदा लेना भैया? मुन्ना, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय। हे बाबा, बाबा, होना फायदा होगा ना? ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। अरे बच्चा 3-4 दिन से बुखार से तड़प रहा है। चामुण्डाय विच्चै। ओम ऐं क्लीं क्लीं बाबा, चामुण्डाय विच्चै। इनको देखो तो, ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय ये विच्चै। हमारा मुन्ना ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ खा रहा है। ये मुन्ना, हर चुप्पी हमारे कलेजा छीन रही है। ये बोल ना, ये आंखें खोल। चामुण्डाय विच्चै। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। हे परमात्मा, इतना जुल्म न कर परमात्मा। संधि की आंखों की रोशनी तो पहले ही छीन ली थी, अब इसकी जिंदगी की रोशनी ना छीन। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ऐसा ना कर परमात्मा, क्लीं चामुण्डाय विच्चै। इतना जुल्म ना कर परमात्मा। चामुण्डाय विच्चै। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। सावित्री, चामुण्डाय विच्चै। धीरज रखो सावित्री, धीरज रखो। ओम ऐं मुन्ना ठीक हो जाएगा चामुण्डाय सावित्री। विच्चै। ओम ऐं बाबा, हमारा मुन्ना ठीक तो हो जाएगा ना? ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ओम ऐं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। हमने इस बालक पे अपना सारा तंत्र मंत्र फूंक दिए हैं, अब आगे चामुण्डा माई की इच्छा। ओम ओम भट्टा। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधान शूलं वुशुण्डीशिरं। ये सब होते हैं ढोंगी। हमारी माँ, तू अच्छे डॉक्टर को दिखा ले। अरे मुन्ना ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा पैसा जरूर खर्च होगा। ये भैया, पैसे का क्या है भैया? पैसा तो हाथ के भीग होता है भैया। छोड़ पैसा, हमारे बच्चे के काम नहीं आया। पैसे का हम क्या करेंगे भैया? हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमको कुछ और नहीं चाहिए भैया, कुछ और नहीं चाहिए।
बाबा के मंत्र से कुछ नहीं होगा। ठीक है भैया, हम अभी सेठ जी के पास जाकर अपना पैसा ले आते हैं भैया, फिर मुन्ना को डॉक्टर पास ले चलेंगे भैया। ए भैया, हम एक उपकार कर दो, ये मुन्ना को तब तक घर ले जाके पटिया कर देना। हम अभी अपना पैसा लेकर आते हैं सेठ जी से, हम फिर मुन्ना को डॉक्टर पास ले चलेंगे भैया। हम अभी आते हैं। मुन्ना को ले चलो भैया, हम अभी आते हैं। हम अभी अपना पैसा लेकर आते हैं भैया। हाँ सावित्री, हमारे मुन्ना का ख्याल रखना भैया, हम अभी आते हैं। ठीक है, तुम ध्यान से जाना सावित्री, ध्यान से जाना। अरे बचवा, बचवा, अम्मा भी गई है थोड़े इलाज के लिए पैसा लेने, फिर हम डॉक्टर को दिखाएंगे। हमारा बचवा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हमारा बचवा। चलो बचवा, अब हम घर चलते हैं। हमारा बचवा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा हमारा बचवा। जी जी मालिक। क्या हिसाब किताब आज का? मालिक सुखिया पैसे मांगने आया था आज। उसको मत दिया करो, चोरी करता है आजकल। भैया कितनी बार मना किया है कि पाँव मत छुआ करो। चलो जाओ उधर, चलो चलो बैठो। बैठो। सेठ जी, ए बुढ़ा, लाइन में आ। ये लाइन में आने का वक्त नहीं है भैया। अरे अरे लाइन में आओ। सेठ जी, सेठ जी, हमारा बच्चा बीमार है, हमारे बच्चे की जान पर बनाई है, हम बड़ी मुसीबत में हैं। तो हमसे क्या चाहती हो? सेठ जी, हमको हमारा पैसा मिल जाता तो मेहरबानी होती सेठ जी। हमारे पास क्या जमा करवा कर गई थी? सेठ जी, एको हंडिया नहीं, वो में पैसा रहा। ए बड़ा, क्या बकवास कर रही है? हमारे पास तेरी कोई हंडिया वंडिया नहीं है। चल निकल यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, हम झूठ बोल रहे हैं का? हम हमारी जिंदगी भर की कमाई दे रहे हैं तुमको। हमारा बच्चा बीमार है सेठ जी। मुनीम जी, जी जरा देखो एक बार, ये बड़ा कहाँ हंडिया कर रही है। खाते में देखो। जी मालिक। क्या नाम है बड़ा तेरा? हमारा नाम सावित्री है साहब। मुनीम जी, जी मालिक। सावित्री नाम का खाता देखो है क्या? जी। हम तो बेकार में ही संग कर रहे थे। ये सेठ तो धर्मात्मा है। हाँ ठीक है, खड़ी रहो चुपचाप। ठीक है मालिक। सेठ जी। ए सवित्री नाम का तो कोई खाता नहीं है। क्यों नहीं है? है ना? अरे ठीक से देखो, फिर से देखो। अरे हम हमारा सारा पैसा तुमको दे रहे। अरे लिखा तो तब होगा ना जब तुमने जमा करवाया होगा। ये लिखा है, क्यों नहीं लिखा? हम झूठ बोल रहे हैं का? अरे हम झूठ बोले तो हमको कोड़ हो जाए। ये हमारा बच्चा बुखार से तड़प रहा है, ये तुम कहते हो लिखा नहीं है। तो हमने क्या ठेका ले रखा तेरे बच्चे का? चल निकल यहाँ से। ये सेठ, भगवान से डर सेठ, भगवान से डर। हमारे बच्चे को डॉक्टर पास नहीं ना ले गए तो मर जाएगा सेठ। हम द्वार गुलाबी करेंगे सेठ। हमको हमारा पैसा दे दो सेठ, हमको हमारा पैसा दे दो। लोगों ने भी भीख मांगने का नया नया तरीका अपना रखा है। ए बड़ो, तू चाहती है या तुझे धक्के मार के निकलवाऊं यहाँ से? चल निकल। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। इसे मेरा पैसा कहाँ गया? हम तो लुट गए। ए मुनीम, जी मालिक। को बुलाओ बाहर से, उसको निकालो यहाँ से। चल बे। कहाँ गया? निकल बुढ़िया को। छोड़ो का। जाइए
सबको सहारा देने वाली कौन बने अब तेरा सहारा, कौन बने अब तेरा सहारा, कौन बने अब तेरा सहारा। अरे सावित्री आ गई तुम? पैसा ले आई सीट से। रो काहे रही हो? पैसा मिल गया? अरे पैसा मिल गया? और पैसा भी गया और विश्वास भी गया। क्या कह रही हो? उसे बेईमान निकला। मान निकला? सुनते तो हैं कि वो बहुत धर्मात्मा है। सुनाई करो जिका कोनो धर्म नहीं, कोनो आत्मा नहीं, वो कहाँ का धर्मात्मा। फिर अब मोहन का इलाज? इलाज हम गरीबों के लिए नहीं है भैया, ये इलाज तो अमीरों का हक है। हमारे गरीबों की किस्मत में तो तड़प तड़प कर मरना ही लिखा है भैया। अरे फिर तुम अपना पैसा ऐसे कैसे छोड़ सकती हो? तुम अपना पैसा मांगने गई थी, अपना कोनो भीख नहीं। क्या करते हम भैया, एक तो गुड़िया वो भी अंधी, क्या करते। तो वही सब पटक पटक कर अपनी जान दे देती, क्योंकि मोहन के बिना तो तुम वैसे भी मर जाओगी। अरे तुम वापस क्यों चली आई? ठीक कह रहे हो बंसू भैया, हमको ऐसे हार नहीं माननी चाहिए थी। हाँ भैया, हमको हार नहीं ना माननी चाहिए थी ना। ये भैया, ये मुन्ना को उठाओ, हम अभी जाकर सेठ जी से अपना पैसा लेकर आएंगे। ये उठाओ मुन्ना को, हम हार नहीं मानेंगे भैया, ये हार नहीं मानेंगे अब। हार नहीं मानेंगे भैया, हम अभी जाएंगे सेठ जी के पास, ये अपना पैसा लेकर आएंगे। हार नहीं मानेंगे। चलो सावित्री, हार नहीं मानेंगे। चलो। जा माही मंदिर, जन्म जन्म की माँ दुखिया की माँ दुखियारी करके हर कोशिश ये हारी, भई बावरी उलझ गई है, बच्चे का सुख ढूंढ रही है। मन का धीरज टूट गया है। कहाँ से? इसे? ये कोई है? उसे? वो धर्मात्मा? ये बुढ़िया, ये क्या तमाशा लगा रखा है? हमार मुसीबत तमाशा, तुम पर पड़े तो विपदा। तुम जाती है कि बताए तुम्हें? ये हम ना जाए यहाँ से, हम ना जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। अरे ठेते को बुलाए, चल दुश्मन चल यहाँ से। डाले, हम नहीं जाएंगे। ये बुढ़िया जाती है कि नहीं? हम ए ना बुढ़ा, जाएंगे। क्या तमाशा लगा रखा है? और ये बच्चा, उठा इसको, चल यहाँ से। इसे, ये देखो हमारे बच्चे को बहुत तेज बुखार है इसे। ये देखो तो मैं तुझे कहा ना इस बच्चे को उठाया से, चल निकल यहाँ से, निकल। हमारे बच्चे बुखार से तड़प रहा है इसे। इनको देखो तो, हमारा पैसा दे दो, हम चले जाएंगे इसे। ये तो वही निशान है जो मेरे मोहन के हाथ पर था। मेरा मोहन, मेरा मोहन, नहीं से, मेरा मोहन मुझे मिल गया। इसे, मेरा बच्चा ये मुझे हमारा मिल बच्चा है इसे, ये हमारा बच्चा है। ए बड़ा, तुझे कहा ना, हाथ हटा यहाँ से, ये मेरा मोहन है। सेठ, हम अपने खून पसीने से पाले हैं इनको। ये हमारा बच्चा है सेठ, ये हमारा बच्चा है।
8 साल पहले खो गया था और आज मुझे मिला। ये तो इस हालत में मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा। ए बड़ा, नहीं तू हाथ हटा, चल। सेठ, ये हमारा बच्चा है सेठ। देखो बच्चा, तो, मैं बुखा रही हूँ सेठ, ये मर अरे तू जाएगा हाथ हमारा हटाना, बच्चा। चल। डॉक्टर, ए बड़ा, ये बच्चा मेरा 8 साल पहले खो गया था। अब इसके इलाज के लिए मुझे जितना खर्च करना पड़े मैं करूंगा। जो मुझे यत्न करना पड़े वो मैं करूंगा। ये काहे करोगे? ये हमारा बच्चा है। क्योंकि ये मेरा बच्चा है। इसके इलाज के लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े मैं करूंगा। चल हट यहाँ से। वाह सेठ वाह, तुम्हारा बच्चा तो लाख कोशिश करके इसको बचाओगे। ये हमारा बच्चा होता तो इसको मर जाने देते। ये कहाँ का न्याय है सेठ? कुछ तो शर्म कर। ये छोड़ अपने बच्चे को, छोड़। ए बड़ा, चल यहाँ से। कहाँ ले गए हमारे बच्चे को? इसे कहाँ ले गए? कहाँ ले गए हमारे बच्चे को? गंजू भैया, कहाँ ले गए? हमारा मोहन जल्दी ठीक हो जाएगा। मोहन का इलाज होगा, मन का जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारा मोहन, हमारे बच्चा भैया जल्दी खेलने कूदने लगेगा। कहाँ ले गए? मत रो सावित्री, ले जाने दे सेठ को, ले जाने दे। उठ सावित्री, उठ सावित्री, उठ। सावित्री यहाँ से चल। ले जाने दे सेठ को, ले जाने दे। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़ के बाजार जा रहा था ना, तो मंदिर में रास्ते में मंदिर आ गया, तो सोचा थोड़ा सुस्ता ले पहले। अरे हम तो बसंत पंचमी यार सोचे पतंगवा ले ले। अच्छा, पतंगवा लेने जा रहे थे। बसंती के लिए मेरा मतलब बसंत पंचमी के लिए पतंगवा ले ले पहले। अरे पल्लव, सुस्ताल, आराम कर, थक गया होगा, पतंगवा ले ले, पतंगवा ले ले, आराम कर। बसंती के लिए पतंगवा ले ले।
देखिए मेरे बच्चे का क्या हाल है। फायदा तो नजर आ रहा है बनारसीदास जी। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा बनारसीदास जी, ये दवाइयाँ तीनों पहर देते रहिएगा, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, हाँ, ध्यान रखिएगा। नहीं नहीं बेटे, वो आपकी अम्मा नहीं, आपकी अम्मा तो यहाँ है। नहीं नहीं, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। कैसी है मेरी बच्ची? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। तेरी तबीयत खराब है, तेरा इलाज चल रहा है। नहीं नहीं, मुझे मेरी अम्मा के पास जाना है। मुझे मेरी अम्मा के, मैं ही तेरी माँ हूँ मेरी बच्ची, मैं ही तेरी माँ हूँ। डॉक्टर साहब, आप एक बार दोबारा देखिए, माथा तेज गर्म हो रहा है। ये समझ नहीं आ रहा बनारसीदास जी, मैं इलाज और दवाइयाँ तो बिल्कुल ठीक दे रहा हूँ, पर बच्चे की हालत में सुधार ही नहीं हो रहा है। आप एक काम कीजिए, बाहर जाकर देखिए क्या बौड़ा बैठी है। डॉक्टर साहब, मेरा एक ही बेटा है, आप इसके इलाज में कोई कसर ना छोड़िएगा। मेरे बच्चे के लिए जो खर्च होगा मैं करूंगा, अपने बच्चे को बचाने के लिए मैं हर यत्न करूंगा। डॉक्टर साहब, बनारसीदास जी, इसमें पैसे की कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप भगवान का रूप होते। आप चिंता न करें बनारसीदास जी, मैं इसको अच्छे से इलाज कर रहा हूँ। बाहर तो कोई बूढ़ा नहीं है। क्या कहा मुनीम जी? जी मालिक। आप मेरे साथ आइए। आइए मालिक, आइए। आइए मालिक, आइए। रुकिए मालिक। ए भैया, ये अंधी बुढ़िया कहाँ रहती है? उसका नाम सावित्री है साहिब। हाँ हाँ, वही सावित्री। याद आ गया ना? अब क्या करने आए हो? मर तो वो वैसे भी रही थी। भैया, अब बहुत समझने की कोशिश करें, हमें सावित्री के घर ले चलिए ना। कहा? अब कहे? अब का लेने आए हो? भैया, सावित्री का बच्चा बहुत बीमार है, आप उनके घर ले चलिए ना, उनका बच्चा बहुत बीमार है, ले चलिए। चलो आइए मालिक, आइए। चलिए चलिए मालिक, चलिए। आओ साहिब। आइए मालिक, आइए।
सावित्री, ओ सावित्री, कौन कौन है? मैं सेठ बनारसी दास हूँ सावित्री। सेठ बनारसी दास, अब क्या लेने आए हो? हमारा बच्चा तो तुम हमसे ले लियो, अब क्या लेने आए हो यहाँ? सावित्री, तेरा बच्चा बहुत बीमार है और डॉक्टर निराश हो चुके हैं। वो रो रो कर तुझे पुकार रहा है। तू चल हमारे साथ, चल और मेरे बच्चे की नहीं, अपने बच्चे की जान बचा ले सावित्री, चल। मरता है तो को मर जाने दो से, हम भी तो यहाँ मर रहे हैं। अब हम हमारे बचवा से स्वर्ग लोक में मिलेंगे से, माँ बेटे की तरह मिलेंगे। लोक में बहुत दुख मिला हमारे बच्चे को, लेकिन तुम देखना, देखना तुम, ये वो लोक में हमको सारी खुशियां मिलेंगी। दुलार से पालेंगे हम हमारे बच्चे को। सावित्री, ममता की लाज रख ले। तो चल हमारे साथ, चल और मेरे बच्चे की। सावित्री, तो अपने बच्चे की जान बचा ले, वो तेरा भी तो बच्चा है। वहाँ से हमारा बच्चा है। हाँ सावित्री, तुम्हारा बच्चा। अरे सावित्री, सेठ जी ठीक कह रहे हैं सावित्री, तुम्हें अपने बचवा के पास जाना चाहिए। शायद तुम्हारे जाने से मोहन ठीक हो जाए सावित्री। लेकिन तुझसे भैया, अरे सावित्री, तो तुम्हारा भी तो बच्चा है। चलो सावित्री, तुम अपने बचवा के पास जाओ, अपने बचवा के पास जाओ सावित्री। भैया सिर्फ तुमने कहने पे जा रहे हैं, ये ले चलो हमको हमारे बच्चा के चलो पास। चलो सावित्री, आओ, हमारे मुन्ना। आओ सावित्री। डॉक्टर साहब, मोहन का तो बुखार और तेजी से बढ़ते जा रहा है। सचमुच इसका बुखार तो और ज्यादा बढ़ गया। मोहन, मेरे बच्चे, भाऊजी तेरे लिए बाजार गए हैं, तेरे लिए खिलौने लाने। बस वो भी आते ही होंगे। तो ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ठीक हो जाएगा। आओ सावित्री, आओ। आराम से सावित्री, आराम से, खाए हमारे मुन्ना, आराम से, मुन्ना आराम से। खाए। सावित्री, इधर, इधर, इधर। मुन्ना, ये मुन्ना देख हम आ गए। मुन्ना, ये मुन्ना, ये कहा क्यों से तुम इसके साथ? ये तो बुखार से तड़प रहा है। ये मुन्ना, ये उठना। अम्मा तुम आ गए। अम्मा तुम कहाँ चली गई थी? अम्मा तुम मुझे छोड़ गए। अब कभी नहीं जाओगी। अम्मा, नहीं बच्चे, नहीं नहीं जाएंगे। हमारा मुन्ना ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देख आप एक बार दोबारा अभी देखिएगा। ठीक हो जाएगा हमारा मुन्ना। हाँ मुन्ना, अभी ठीक हो जाएगा। देखना तुम, हमारा मुन्ना है ना। ठीक हो जाएगा हमारा मुन्ना, देखना। नासिदास जी, बच्चे की हालत में अब सुधार हो रहा है। लगता है दवाइयाँ काम करने लगी हैं। अच्छा बनारसी दास जी, दवाइयाँ समय पर देते रहना। मैं चलता हूँ। जी डॉक्टर साहब।
हम तुम्हारा ये एहसान किस तरह चुकाएंगे सावित्री? और जब तुम चली जाओगी, मोहन को तो फिर से बुखार आ जाएगा। ऐसे ये हमारा बच्चा, ऐसे ये हमारा बच्चा है, ये अब नहीं आएगा इनको बुखार। अगर इनको बुखार आए तो हमको बुलाए लेना से, हम फिर आ जाएंगे से, हम फिर आ जाएंगे। सावित्री, रुको सावित्री। मुनीम जी। जी मालिक। ये लो सावित्री। ये कहा है से? ये तुम्हारे जमा किए हुए रुपए। जिंदगी भर भीख मांग मांग कर ये पैसा इकट्ठा किए रहे, हम मंदी पैसे का करेगी से? ये तो हम हमारे बच्चों के लिए इकट्ठा किए थे। जब हम हमारे बच्चे तुमको सौंप दिए तो ये पैसे का क्या करेंगे से? पैसे का क्या करेंगे? सावित्री अपनी जिंदगी की जमा पूंजी सेठ को सौंप कर चल पड़ी। सालों से पाला अंधी आंखों का तारा सेठ को सौंप कर, और पेट काट कर पाई पाई जोड़ा वो धन, अपना सब कुछ त्याग कर चल पड़ी। हालांकि उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होती हुई भी आज सेठ से भी ज्यादा महान थी। आज सेठ भिखारी था और वो दाता थी। जी हाँ, आज सेठ भिखारी है और वो भिखारिन दाता है। दाता, वास्तव में दाता, एक माँ, सच्ची माँ। जोरदार तालियों से अभिनंदन पूरी टीम का, सभी कलाकारों का। कृपया मंच पर एक बार फिर आकर के सभी का आशीर्वाद आप लीजिए। सभी कलाकारों से मेरा अनुरोध, सभी कलाकार, संजय कश्यप जी जो इनके निर्देशक हैं, उनको लेकर के मंच पर आते हुए गुरुदेव की इस उत्कृष्ट रचना की बेहतरीन प्रस्तुति जो आप सबके दिलों तक जरूर पहुंची होगी। अमृता जी। On behalf of Kalibadi Chandigarh, we appreciate Sanjay Kashyap ji. Have a big round of applause for Sanjay Kashyap sir. And it's a mind-blowing presentation of Tagore under the guidance of Sanjay Kashyap ji, and it is a Kalibadi Chandigarh production. Thank you. এর পরের
আমাদের যে অনুষ্ঠানের দিকে আমরা এগিয়ে যাব তা হলো প্রথম কবিতা, ফিউশন অফ মিউজিক, ক্রিয়েটিভ ডান্স, পোয়েট্রি অ্যান্ড ক্যানভাস পেন্টিং in a same breath. 4 forms of art have been blended together to invoke the ode to love. এখানে এমন একটি প্রস্তুতি হবে যেখানে একসাথে একই থিমের ওপরে 4টি ক্রিয়েটিভ ফর্ম আর্টের দেখানো হবে। একদিকে রবীন্দ্রনাথের গান, তার সাথে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, তার সাথে ক্রিয়েটিভ ডান্স, এবং সেই আধারে সেই বক্তব্যে যা বর্ণিত হচ্ছে তা চিত্রায়ন করবেন কোনো শিল্পী ক্যানভাস পেন্টিংয়ের মাধ্যমে ওইটুকু সময়ের অবসরে 14 মিনিটের মধ্যে। The name itself suggests the correlation between Tagore's romantic masterpiece Shesher Kobita, the magnum opus of Tagore, written at the age of 80. The poet is invoking the god of love, Shesher Kobita. শেষের কবিতা থেকে কিছু অংশ কবিতার নেওয়া হয়েছে এই প্রথম কবিতাতে, এবং শেষের কবিতাতে রবীন্দ্রনাথ জন ডানের যে পোয়েট্রি ব্যবহার করেছেন ইংলিশ, সেই কবিতাও আমরা কিছু এখানে নিয়েছি। আর যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির ঈশ্বর, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে অনুভূতির জন্ম দিয়েছেন সেই অনুভূতি দিয়ে আপন রঙের মাধুরী মিশিয়ে আমরা রচনা করেছি প্রথম কবিতা। এখন বাকি বক্তব্য বলবেন রাজেশ আত্রে স্যার। इसमें कानों की नहीं, सिर्फ आंखों की जरूरत पड़ेगी। कान सुनेंगे सिर्फ एक संगीत, मधुर संगीत, कान सुनेंगे एक मधुर कविता भी, पर हमारे नेत्र अभिभूत होंगे एक सुंदर नृत्य देखते हुए। और साथ ही साथ एक चौथा फ्यूजन भी इसके साथ ऐड है, एक कैनवास आपके सामने यहां आ चुका होगा। जी हाँ, मैं खंबे के पीछे से नहीं देख पा रहा, पर आप लोग जरूर देख पा रहे होंगे। वहां पर इस पूरे फ्यूजन का जो प्रथम कविता जो नाम है, उसको यहां पर हमारे कलाकार जीवंत करेंगे सबके सामने लाइव पेंटिंग करते हुए। तो एक प्रकार से यह संगीत है, काव्य है, नृत्य है और चित्रकला है, इन चारों का अनूठा संगम, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की मशहूर कविता शेषेर कविता, जिसका जिक्र अभी किया अमृता जी ने, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जिंदगी के 80वें पड़ाव में लिखी थी, यानी जब वो 80 वर्ष के थे। और ये एक प्रेम की अनुभूति है, प्रेम का इसमें इजहार है, प्रेम का इसके अंदर अपने आप में वर्चस्व है, सब कुछ है। और एक 80 वर्ष की उम्र में भी रविंद्रनाथ टैगोर की ये प्रस्तुति आज आपके सामने 4 अलग अलग फ्यूजन के साथ, 4 अलग अलग फॉर्म्स ऑफ आर्ट के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा परिचय करवा दूं। संगीत में आप सुनेंगे अमृता जी, जो यहाँ से चली गई हैं, जी हाँ, बहुत मधुर गाती हैं, और उतने ही मधुर गाते हैं उनके जीवन साथी, उनके हम सफ़र, हम हर कदम पर उनके साथ देने वाले अनन्या गांगुली जी। तो संगीत होगा अमृता गांगुली और अनन्या गांगुली का, उनकी आवाज़ में। काव्य पाठ आप सुन पाएंगे श्री GS दास गुप्ता, और उसमें भी अमृता जी रहेंगी। अमृता जी तो हमारे इस पूरे प्रोग्राम की बैकबोन है ना। नृत्य में आप देख पाएंगे बहुत बेहतरीन मनमोहक नृत्य अनिर्बान बर्मन और परिष्मिता पालित का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कैनवास पर लाइव पेंटिंग करेंगे आपके सामने, वो हैं शोमा दास। शोमा दास की आप पेंटिंग देख पाएंगे। शोमा दास, उनकी हाथों में जो एक जब तुलिका आ जाती है ना, तो आप देखिए कितने बेहतरीन रंगों को यहाँ पर उकेर करके अपने आप आपके कैनवास पर आपके सामने दिखाई देंगे। तो इन चारों कलाओं का एक साथ मिश्रण, बेहतरीन फ्यूजन, प्रथम कविता। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन।
gently over my garden, wind of the southern sea. In the hour my love cometh and calleth me. চুমিয়া যেও তুমি আমার বনভূমি, দক্ষিণ সাগরের সমীরণ। যে শুভক্ষণে মম আসিবে প্রিয়তম, ডাকিবে নাম ধরে অকারণ। জানিনে যদি তারে নাই চিনি গো সে কি। Oh, what is this mysterious and uncapturable bliss that I have known, yet seems to be simple as breath, easy as a smile, and older than একই রহস্য, একই আনন্দ রাশি, জেনেছি তাহারে পাইনি তবুও পেয়ে, তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিঃশ্বাসী, তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি, পুরানো সে যেন এই ধরনের চেয়ে। সে কি আমার কুড়ির কানে কবে, সে কি আমার কুড়ির কানে কবে কথা গানে গানে পরাণ তাহার নেবে কিনে এই নব ফাল্গুনের দিনে। আমরা যাব যেখানে কোনো যাইনি নেই সাহস করি, ডুবি যদি তো ডুবি না কেন, ডুবুক সবই ডুবুক তরি। For we are bound where the mariner has not yet dared to go, and we will risk the ship, ourselves, and all. तुझे थामे कई हाथों से मिलूंगा मत भरी रातों में, जगा के अनसुनी सी धड़कन, बलमवा भर दूंगी
से सताएगी, कभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। গ্রন্থি আমরা দুজন চলতি হওয়ার পন্থী, রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল, পরাণে ছড়ায় আবির গুলাল। ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য, হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত। কাছে কেন লাজে না জানো, সেই ভালো আমারে না হয় না জানো, সেই ভালো নাই আমাদের কনক চাপার পুঞ্জ, বনবিথিকায় কীর্ণ বকুল পুঞ্জ। হঠাৎ কখন সন্ধ্যা বেলায় নাম হারা ফুল গন্ধ এলায়, প্রভাত বেলায় হেলা ভরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ। উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ। আমাতে হয়নি যে কথা, মর্মে আমার আছে সে বারতা। আমার বাঁশিটি
সেই ভালো সেই ভালো নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন, নাই রে ঘরে লালন ললিত যত্ন, পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়, বন্ধন তারে করি না খাঁচায়, ডানা মেলে দেওয়া মুক্তি প্রিয়ে দুজনে দুজনে তৃপ্ত, আমরা চকিত অভাবনীয়ে কচিত কিরণে দীপ্ত। তোমাতে আমাতে হয়নি যে কথা, মর্মে আমার আছে সে বারুতা। তোমাতে আমাতে হয়নি যে কথা, মর্মে আমার আছে সে বারুতা। না বলা বাণী, না বলা বাণী নিয়ে আকুলতা আমার বাঁশিতে বাজানো সেই ভালো সেই ভালো। আমারে না না জানো সেই ভালো সেই ভালো। For God's sake, hold your tongue and let me love. দোহাই তোরে একটুকু চুপ কর, ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর। For God's sake, hold your tongue and let me love. মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর, বেনু বন ছায়া হয়েছে মধুর। মোর বসন্তে লেগেছে তো সুর, বেনু বন ছায়া হয়েছে মধুর। থাক না এমনি গন্ধে বিধুর, মিলন কুঞ্জ সাজানো সেই ভালো সেই ভালো। আমারে না হয় না জানো সেই ভালো সেই ভালো। आपकी तालियां बता रही हैं। जोरदार तालियां एक बार सभी कलाकारों के लिए जो मंच पर इस समय आपके सामने हैं। अनन्या गांगुली जी, जीएस दास गुप्ता जी, अनिर्बान बर्मन, परिष्मिता पालित, शोमा दास और हमारी अमृता गांगुली जी। जोरदार तालियां सभी के लिए। यकीनन आप लोग जो सामने बैठे हैं, कैनवास की पेंटिंग आप लोगों ने देखी, इस पूरे फ्यूजन को किस बेहतरीन तरीके से वहाँ पर उतारा शोमा जी ने। और अनन्या जी, आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ के, और क्या मधुर संगीत आपने सुनाया। अनन्या जी, जोरदार तालियां आपके लिए। अभिमान फिल्म का गाना हम सभी जानते हैं, ये तेरे मेरे मिलन की रहना, राग खमाज पर आधारित है ये।
और वही खमाज जो हमने हिंदी में सुना वही बंगाली में भी सुना। दोनों को एस.डी. बर्मन का संगीत है और मजरू सुल्तानपुरी के शब्द हैं, शायद आप लोगों को याद होंगे। बहुत बेहतरीन प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलाकारों का, आप सभी का आभार। ऐसी ही प्रस्तुतियां और हमें देते रहिएगा।